Hi guys, so welcome to our this series Insurance Booster. In this series, we are going to discuss another add-on which is being provided in property insurance, and that is spontaneous combustion. तो इसके बारे में मैं एक इंसिडेंट पढ़ रहा था. बेसिकली देयर वर टू सिमिलर इंसिडेंट्स. वन वाज इन यूएसए. उसमें क्या हुआ, नाचोस चिप्स जो रहते हैं टॉर्टिला ब्रांड्स के, दे कॉट फायर without any external ignition source. Similar incident happens in Japan, wherein sushi flakes, देखो sushi flakes होते हैं, fish के flakes होते हैं, which are used to season sushi. Sushi Japanese dish है, आपको पता है. तो they caught fire without any external source. तो ये दोनों इंसिडेंट्स जो हैं इंश्योरेंस की भाषा में या टेक्निकल भाषा में या साइंटिफिकली we call it spontaneous combustion, and this is the topic of today's lecture. ठीक है. तो before we discuss this spontaneous combustion, we should be familiar with what is normal combustion, means what is actual fire. जो आप देखते हो फायर, वो क्या होती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है. So normal combustion, you see, basically there are certain prerequisites of normal combustion. तो क्या prerequisites होती हैं? There should be a combustible substance, that is a substance which can caught fire. ठीक है. तो ये क्या हो सकता है आपका? वुड हो सकता है, ये पेपर हो सकता है. बट अगर आप स्टील की बात करो, आयरन की बात करो, तो बेसिकली दीज आर नॉट कंबस्टिबल सबस्टांसेस. ओके. व्हाट इज सेकंड? द सेकंड इज योर सपोर्टर ऑफ कंबशन. ठीक है. तो सपोर्टर ऑफ कंबशन जनरली क्या रहता है? इट इज ऑक्सीजन. और कहाँ से आती है? एयर से आती है. ओके. व्हाट इज थर्ड? क्या होना चाहिए? नहीं, सोर्स ऑफ इग्निशन. When I say source of ignition, it means external source of ignition. Okay? ठीक है. तो ये क्या हो सकता है? It can be matchstick. It can be your lighter. It can be your sparks. और स्पार्क जो होते हैं वो आपके ग्राइंडिंग व्हील से भी हो सकते हैं. ग्राइंडिंग व्हील, ये आपके वेल्डिंग वर्क से भी एमिनेट हो सकते हैं. ठीक है. Then the most important and most interesting is ignition temperature. Right. This is very important. तीनों आपके पास होंगे, and if you don't reach ignition temperature, still there is no fire. When I say normal combustion, इसका मतलब फायर जो लपटों के साथ with flames होती है, उसकी बात हो रही है. This is actual ignition. Okay. Right. So ignition temperature is the minimum temperature where a substance catch fire. ठीक है. तो जब तक ये अटेन नहीं होगा, there is no fire. ठीक है. Now what is different in spontaneous combustion? इसको हम मिटा सकते हैं. ठीक है. अब देखिए, spontaneous combustion में there will be combustible substance, there will be supporter of combustion, ऑक्सीजन रहेगी. ठीक है. यहाँ भी कमोडिटी में स्पॉन्टेनियस कंबशन रहेगी. इट विल एब्जॉर्ब एयर, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. ठीक है. इग्निशन टेम्परेचर ये थोड़ा सा डाइसी है. ठीक है. सोर्स ऑफ इग्निशन ये जो है ये बेसिकली डिफरेंट है. ठीक है. क्यों डिफरेंट है? बिकॉज स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एट इट्स ओन.
It means spontaneous combustion cannot be from external source of ignition. So the source must lie within the commodity. ठीक है, तो इसका मतलब जो सोर्स रहता है spontaneous combustion का वो रहता है internal heating. So ये when we say source of ignition, here it will be internal source of ignition. ओके, अब इंटरनल सोर्स ऑफ हीटिंग क्या हो सकता है वो डिपेंड करता है व्हाट सॉर्ट ऑफ कमोडिटी इट इज. ओके, तो डिफरेंट कमोडिटीज के बारे में जब हम जाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में इंडिविजुअल डिस्कस करते हैं, बट जनरली इट कैन बी योर प्रेशर, हाई प्रेशर, मॉइस्चर, माइक्रोबियल एक्शन, ठीक है. So these are few of the sources of internal heating. Okay, so there are certain commodities which are prone to spontaneous combustion. इसका मतलब ये है कि it is their inherent vice. Okay, तो इसीलिए जो है normally property insurance में spontaneous combustion is excluded because it is considered as inherent vice. Okay, so we will see some of the commodities which are prone to spontaneous combustion. The first thing which will come to your mind is coal. Second, copra, nariyal. Third, oil rags. Fourth, oil cakes, molasses. ओके, बहुत सारी चीजें हैं. देयर इज अ लिस्ट फॉर दिस commodities prone to spontaneous combustion in your fire tariff. You just go through it, तो you will have an idea कि कौन कौन सी किस किस कैटेगरीज की हैं. There are 4 categories, 1 2 3 4. So you just see the list, okay, so that you can have an idea. So in coal, what happened? What can be the source of internal heating? You see, coal की ये heap है, ये जो lower layers हैं, they are subjected to high pressure because of the weight of the upper layers of the coal. ठीक है, तो high pressure रहेगा. Okay, then high pressure leads to high temperature. Moreover, if there is a moisture, it will also contribute to the spontaneous combustion. ठीक है, तो इसीलिए reinsurers they resort to applying some warranty कि कोल की हीप जो है वो इतनी होनी चाहिए, उनका डिस्टेंस इतना होना चाहिए. ये हम किसी और उसमें लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, देन कोपरा, ऑयल रैग्स, बेसिकली ये इसको हम डिस्कस करना है. ठीक है, ये क्या रहता है, आप पेंट करते हैं, वार्निश करते हैं, तो जो बचा पेंट रहता है तो क्या होता है, किसी कपड़े से यू वाइप इट आउट. ठीक है, तो क्या उसमें जो कपड़ा होता है विच इज इम्प्रेगनेटेड विद द रेजिडुअल ऑयल, पेंट और वार्निश, उसको बोलते हैं ऑयल रैग. ठीक है, दिस इज वेरी डेंजरस. ओके, नाउ व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंटरनल हीटिंग इन ऑयल रैग्स? बेसिकली सोर्स उसमें रहता है आपका ऑयल. ठीक है, तो अगर ये आप उसको बिना फैलाए ऐसे ही रख देते हो, ठीक है, तो इट कैन कैच फायर. और NFPA जो है, ठीक है, उसने ऑयल रैग्स को स्टोर करने के लिए एक स्पेसिफिक गाइडलाइन बनाई है. दैट इज these oil rags are to be stored in metallic bins. ओके, एक और काम कर सकते हैं आप, ऑयल रैग्स को फैला के हवा में आप उसको रखेंगे, तब भी आपकी जो इसकी प्रोननेस है टुवर्ड्स स्पॉन्टेनियस कंबशन वो कम हो जाएगी, क्योंकि एयर के फ्लो से, ठीक है, उसकी जो इंटरनल हीट है इट विल गेट डिसिपेटेड. ऑयल केक्स क्या होते हैं कि भाई मस्टर्ड है, आपकी मस्टर्ड सीड्स हैं, इसमें से आपने ऑयल निकाल लिया, बचा क्या, रेजिडुअल. ठीक है, तो ये रेजिड्यू जो है ये चारा रहता है एनिमल्स का, हिंदी में इसको बोलते हैं खल. ठीक है,
दिस इज ऑल्सो प्रोन टू स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, एक और चीज है ये बगास, इसमें भी बहुत सारी स्पॉन्टेनियस कंबशन होती हैं। ठीक है, इसमें इंटरनल सोर्स ऑफ हीटिंग है माइक्रोबियल एक्शन। ठीक है, कि जो बैक्टीरिया होते हैं जब वो इंटरेक्ट करते हैं, जब रिप्रोड्यूस करते हैं, उनकी एक्टिविटी से क्या होता है, टेम्परेचर गेट्स हीटेड, इट गेट्स एलिवेटेड। ओके, देन मोलासेस आपको पता है बगास क्या होती है। बगास होती है कि भाई ये आपका गन्ना है, ठीक है, शुगर केन, यू एक्सट्रैक्ट शुगर जूस फ्रॉम दैट। ठीक है, जूस आपने निकाल लिया तो जो रेजिडुअल बच जाता है उसको बोलते हैं बगास। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं which are prone to spontaneous combustion. Now we are going to discuss insurance aspects of spontaneous combustion and these are very very important. Normally फायर पॉलिसी में क्या होता है, फायर पॉलिसी यू सी इज named peril policy. Okay, and what happened, spontaneous combustion is an exclusion. और क्या इसका मतलब ये है कि ये पूरी ही एक्सक्लूड हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए उसमें जो लिस्ट थी आप उसमें है भी ऐड कर सकते हो, घास फूस जो रहता है। ठीक है, अगर वो दबा रहता है एंड इफ देयर इज मॉइस्चर देन इट इज आल्सो प्रोन टू स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, तो हे स्टैक्स जो है वो भी आपके स्पॉन्टेनियस कंबशन को कर सकते हैं। ठीक है, अब ये स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या आउटराइटली एक्सक्लूड होती है? बिल्कुल ही एक्सक्लूड हो जाती है? ऐसा नहीं है। लेट्स से ये बहुत सारे बैग्स हैं किसी ऐसी कमोडिटी के विच इज प्रोन टू स्पॉन्टेनियस कंबशन। ओके, एंड व्हाट हैपेंस, दिस इज बैग 1, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस कंबशन ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, और फायर जो है, सब्सिक्वेंट फायर जो है दैट डैमेज्ड दीज बैग्स। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, स्टैक 1 दैट इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ spontaneous combustion is excluded, others damaged by fire are paid. Okay, so this is paid, this is paid, so whole thing is paid provided it is damaged by fire. This is very important. Okay, so यानी कि स्पॉन्टेनियस कंबशन जो है आउटराइटली आपकी बिल्कुल ही एक्सक्लूड नहीं होती है। किस केस में? जब स्पॉन्टेनियस कंबशन लीड्स टू फायर। ठीक है, तो ये सब्सिक्वेंट डैमेजेस व्हिच आर फ्रॉम फायर बाय फायर तो वो कवर होंगे। ठीक है, इसका जो है यहाँ से स्पॉन्टेनियस कंबशन ओरिजिनेट होती है, दैट विल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, ऐसा भी केस हो सकता है कि भाई ये सेम हम अरेंजमेंट बना सकते हैं। ठीक है, so this is the same bag number 1, there is spontaneous combustion but there is no fire. Okay, इस केस में क्या होता है, जब spontaneous combustion होती है there will be heating, there will be a rise of temperature. ठीक है, there will be a smoke. ठीक है, और अगर उसमें एक्चुअल इग्निशन नहीं होती है, there is no flame, तो क्या होता है कि डिसकलरेशन होती है कमोडिटी की, स्कॉर्चिंग हो सकती है, स्मोक डैमेज हो सकता है, चारिंग हो सकती है। ये सारे के सारे जो डैमेज है दीज आर विदाउट एक्चुअल इग्निशन, दीज आर ओनली ड्यू टू एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर बट देयर इज नो फायर एज सच। तो फायर का एक स्पेसिफिक जो है डेफिनेशन है इंश्योरेंस में, तो फायर शुड बी अकम्पनीड बाय फ्लेम्स, then only we call it fire. ठीक है, तो अगर spontaneous combustion होती है but there is no fire, only discoloration, scorching, smoke damage, charring, ऐसे कुछ चीजें होती हैं, then not covered. ठीक है, ये तो कवर पिछली बार भी नहीं हुआ था, नॉट कवर्ड, इससे आगे फायर तो चली नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ कुछ डिस्कलरेशन हो सकती है, तो ये कोई भी डैमेज पे नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, now you have taken spontaneous combustion as add-on. Okay, then क्या ये सारी चीजें पे होती हैं? क्या कुछ पे होता है, कुछ नहीं पे होता है? That we will discuss. Okay,
You see, when you go through the wording of spontaneous combustion add-on, वहां पे लिखा होता है डैमेज बाई फायर ओनली, फायर ओनली, ठीक है। और साथ में ये भी लिखा रहता है दिस फायर ओनली शुड नॉट बी ओमिटेड फ्रॉम द पॉलिसी और फ्रॉम द वर्डिंग्स एट एनी कॉस्ट। ओके, तो ये कैसे ऑपरेट होता है रूल्स? सेम हमने वो अरेंजमेंट बना लिया टैक्स का। यहाँ पे आपकी spontaneous combustion, this is point of origin of spontaneous combustion, there are flames, there is fire, subsequent damage हो गया, ठीक है। In this case one is paid, ठीक है, others by fire paid, ठीक है। That is this bag from where spontaneous combustion originates, that also it is also paid, ठीक है। Subsequent damage by fire is also paid, ठीक है। अब ये वाला केस देखिए, सेम अरेंजमेंट, दिस इज बैग वन, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस कंबशन होती है, नो फायर, ओके, दिस इज नॉट पेड। So whether you go for spontaneous combustion as an add-on or you don't go for it, spontaneous combustion itself will not be paid unless it is followed by the fire, actual fire, that is with flames, okay। यानी कि ये सिर्फ spontaneous combustion है, यहाँ पे फायर नहीं हो रही है, तो although you have opted for spontaneous combustion add-on, still it is not paid, right। तो होप कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लैरिफाई हो गई होंगी। तो ऐसे ही कुछ एड ऑन्स विल डिस्कस, बहुत आसान भाषा में, किसी टेक्निकल जार्गन में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सिंपल हिंदी अंग्रेजी में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।